السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ عزیز باغ شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ میں عالمی سطح کی سرمایہ کاری میں اضافہ، انڈین اوورسیز کانگریس کے نمائندہ اجلاس سے نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا کا خطاب۔ کارپوریٹ سماجی ذمہ داریوں میں وسعت کی وکالت، کمپنی سیکرٹریز کی سدرن انڈیا ریجنل کانفرنس کا سریدر بابو نے کیا افتتاح۔ انجینئرنگ طلباء و اساتذہ کے خلاف وزیر اعلیٰ کے مبینہ ریمارکس، KTR نے راہل گاندھی کو لکھا کھلا خط۔ تالاب چنچلم میں برقی شاک سے خاتون جاں بحق۔ اور ازدواجی رشتے میں کشیدگی کی انتہا، شوہر نے بیوی کا بے دردی سے کیا قتل، ہنم کنڈا میں افسوسناک واقعہ۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ترقی کو 2 بنیادی ستونوں کے طور پر آگے بڑھاتے ہوئے تلنگانہ کو عالمی سطح پر سرمایہ کاری کا مرکز بنانے کی سمت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف سال 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت اور آئندہ 5 برسوں میں $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ہے۔ امریکہ میں انڈین اوورسیز کانگریس IOC کے نمائندہ اجلاس سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے تحت ماچرلہ میں آلودگی سے پاک بھارت فیوچر سٹی تعمیر کیا جا رہا ہے، جبکہ ریاست کو کور اربن کیور
प्री अर्बन, प्यूर और रूरल एग्री रेयर इख्तिसादी जोन्स में तकसीम करके मुतवाज़िन तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को आलमी मियार की तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम की गई है। हर असम्बली हल्के में बैनुल-अक़वामी मियार के रिहायशी स्कूल बनाए जा रहे हैं और टाटा ग्रुप के इश्तिराक से सरकारी ITI इदारों को 2100 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरबियती मराकज़ में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 27 लाख तलबा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते की स्कीम और सरकारी जूनियर कॉलेजों के इंटरमीडिएट तलबा के लिए दोपहर के खाने की सहूलत भी शुरू की है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद में झीलों, नालों और सरकारी आराजी पर कब्जों की रोकथाम के लिए हाइड्रा निज़ाम नाफिज किया गया है, जबकि मूसा नदी की सफाई और तरक्की के लिए मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसे लंदन के दरियाए टेम्स की तर्ज पर सियाहती और तिजारती मरकज बनाया जाएगा। उन्होंने साबिका BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 बरसों में रियासत को भारी कर्जों में ढकेल दिया गया था। ताहम मौजूदा हुकूमत ने माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बहाल करते हुए सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें हर माह की पहली तारीख को जारी करने का निज़ाम नाफिज किया है। साथ ही सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1.20 करोड़ रुपए के मुफ्त हादसाती बीमा का भी आगाज़ किया गया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर जोपली कृष्णा राव, गवर्नमेंट विप ए दियाकर, मुतादिद अरकान असम्बली, कांग्रेस रहनुमा और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने सेक्रेटेरिएट में एक इब्तिदाई जायजा इजलास की सदारत करते हुए 20 अगस्त को तमिलनाडु के महाबलीपुरम, चेन्नई में मुनक्किद होने वाले जनूबी जोनल कौंसिल की इजलास की तैयारियों और एजेंडे का जायजा लिया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कौंसिल में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ निकात पर तफसीली गौर किया और मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी कि तेलंगाना से मुताल्लिक तमाम एजेंडा निकात का बारीकी बीनी से जायजा लिया जाए। उन्होंने प्लानिंग महकमे को यह भी हिदायत दी कि बैन रियासती और इलाकाई नौयत के अहम मसाइल की निशानदही की जाए ताकि रियासत उन्हें कौंसिल के इजलास में मौसर अंदाज में उठा सके। संजय जाजू ने मुताल्लिका महकमों को ज़र अल्तवा मामलात जल्द अज जल्द निपटाने, आइंदा 2 दिनों में जवाबात तैयार करने और तमाम महकमों के बाहमी इश्तराक से तेलंगाना की सिफारिशात और तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर वज़ीर आला को पेश करने की हिदायत दी। इजलास में सीनियर अफसरान विकास राज, सबिया साची घोष, गौरवपल ई श्रीधर, क्रिस्टीना जोंथो समेत मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की और इजलास की तैयारियों से चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया। तेलंगाना के वजीर बराए IT व सनत D श्रीधर बाबू ने कॉरपोरेट इदारों से अपील की है कि वो अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरगर्मियों को रियासत के तवील मुद्दती तरक्याती विजन तेलंगाना राइजिंग 2047 से हम आहंग करते हुए रियासत की तरक्की में शराकतदार बने। कोंडापुर में तेलंगाना कॉन्ट्रैक्टर्स कल्चरल क्लब में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के हैदराबाद चैप्टर के ज़र-एहतमाम मुनक्किदा 2050वें सदर्न इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत, सनत और समाज की मुश्तरका कोशिशों से ही जामे और पायदार तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 का मकसद रियासत को जामे मौशी तरक्की, समाजी खुशहाली, रोजगार के मौक़े, इख्तिरा और हर हल्के तक तरक्की के समरात पहुँचाना है। वजीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत सरमायाकारों और सनतों की काबिल एतमाद शराकतदार रहेगी और मौसर CSR मनसूबों के साथ सनती सरमायाकारी को भी भरपूर ताउन फराहम करेगी। D श्रीधर बाबू ने मसनूई ज़हानत, AI, डाटा गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते हुए किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी सेक्रेटरीज को सिर्फ ज़ाब्तों की पाबंदी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि कॉरपोरेट बोर्ड्स के लिए गवर्नेंस, पायदारी और अखलाकी कारोबारी तरीक़ों के हवाले से स्ट्रैटेजिक मुशीर का किरदार भी अदा करना चाहिए। उन्होंने ISCI की जानिब से रियासत के फ्लैगशिप कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDX में नॉलेज पार्टनर के तौर पर शामिल होने का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मजीद कॉरपोरेट इदारे और पेशावर तंजीमें तेलंगाना की तवील मुद्दती तरक्की में हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। तकरीब में महादेव तिरुनागिरी, M दामोदरन, शिल्पा कार्तिक समेत ICSI के कौमी और इलाकाई ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस के लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी के नाम एक खुला खत जारी करते हुए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से इंजीनियरिंग तलबा, इंजीनियर्स और असातिज़ा के बारे में मुबैना तौर पर क्रिमिनल वेस्ट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर शदीद एतराज़ किया है। केटीआर ने अपने खत में कहा कि एक तरफ हिंदुस्तानी इंजीनियर आलमी कंपनियों की क़यादत कर रहे हैं, खलाई तहक़ीक़ में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की में अहम हिस्सा डाल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला उन्हें क्रिमिनल वेस्ट करार दे रहे हैं, जो निहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो इस मामले पर अपनी अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी अदा करते हुए वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें। केटीआर का कहना था कि अगर राहुल गांधी खामोश रहते हैं तो इसे वज़ीर आला के बयान की तायीद तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि राहुल गांधी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को गैर मशरूत माफ़ी मांगने की हिदायत दें, बसूरत दीगर खुद कांग्रेस की जानिब से तलबा, इंजीनियर्स और असातिज़ा से मौज़रत करें। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी माजी में भी यूनिवर्सिटी तलबा को बीर बिरयानी बीच कहकर उनकी तौहीन कर चुके हैं और नौजवानों के सियासी और तालीमी किरदार को मुसलसल निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान तलबा और असातिज़ा के बारे में ऐसे बयानात तेलंगाना के नौजवानों की खुददारी और एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस नौजवानों के एहतराम और जमहूरियत की बात करती है, लेकिन उसके वज़ीर आला के बयानात इसके बरअक्स हैं। केटीआर ने दावा किया कि नौजवान कांग्रेस हुकूमत के वादों और बयानात को याद रखेंगे और मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। आखिर में केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इंजीनियरिंग तलबा, इंजीनियर्स, असातिज़ा और नौजवानों से गैर मशरूत माफ़ी मांगें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महांकाली मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और बोनाल त्यौहार के मौके पर खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़रा कुंडा सुरेखा, पूनम प्रभाकर और सीता अक्का भी वज़ीर आला के हमराह मौजूद थे। इसके अलावा मुतादिद अरकान असम्बली, MLAs, अरकान कानून साज कौंसिल, MLCs, मंदिर के अहदेदारान और बड़ी तादाद में अकीदतमंद भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने मंदिर में खुसूसी पूजा के दौरान रियासत में अमन, खुशहाली, अच्छी बारिश, अवाम की फलाह बहबूद और तेलंगाना की मुसलसिल तरक्की के लिए प्रार्थना की। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र मंदिर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने यहाँ दर्शन किए। अमेरिका की कौंसल जनरल लॉरा ई विलियम्स ने तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर की खुसूसी दावत पर सिकंदराबाद के उज्जैनी महांकाली मंदिर में मुनक्किदा बोनाल त्यौहार में शिरकत की। वज़ीर ने उनका परतपाक इस्तकबाल किया, जबकि कौंसल जनरल ने रिवायती अंदाज में बोनम पेश किया और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने उन्हें मंदिर की तारीख, बोनाल त्यौहार की मजहबी, रूहानी और सकाफती अहमियत से आगाह करते हुए कहा कि यह त्यौहार तेलंगाना की तहजीब, रिवायात और अवाम के गहरे अकीदे की अलामत है। उन्होंने बोनम पेश करने के बाद मुनक्किद होने वाली रिवायती रंगम तकरीब की अहमियत भी बयान की। वज़ीर ने कहा कि अमेरिकी कौंसल जनरल की शिरकत तेलंगाना की सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने का एक अहम मौका है और इससे तेलंगाना और अमेरिका के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उज्जैनी महांकाली बोनालू त्यौहार के मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की सरकारी रिहाइशगाह पर रिवायती अंदाज में बोनालू की तकरीब और ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, मुतादिद रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, आला हुक्काम और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए तेलंगाना की रिवायती खानों से तवाज़े की, जबकि वज़ीर आला ने वज़ीर के अहल खाना से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सिकंदराबाद के उज्जैनी महांकाली मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक़ वज़रा जी जगदीश रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव और अंबरपेट के रुकन असम्बली के वेंकटेश भी उनके हमराह मौजूद थे। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केटीआर ने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम अक़ीदत एहतराम के साथ बोनाल त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल बोनाल को सरकारी रियासती त्यौहार करार देने का मुतालबा किया जाता था, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। उनके मुताबिक बीआरएस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद बोनाल को सरकारी रियासती त्यौहार का दर्जा दिया। केटीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने
यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की लागत से तरक्की व तोसी की, जबकि बोनाल त्यौहार के मौके पर रियासत भर के मंदिर कमेटियों को माली इमदाद भी फराहम की गई। उन्होंने बताया कि मंदिर में रियासत में अच्छी बारिशों, किसानों की खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी प्रार्थनाएं की गईं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद इस वक्त हुकूमत की बेहिसी का शिकार है। इंतजामी बेकायदगियां, सिक्योरिटी कोताहियां रोज का मामूल बन गई हैं। इस सिलसिले में पेश है काशिफ अली खान के साथ SM रफी की ये रिपोर्ट। हुकूमत तेलंगाना और हैदराबाद की पुलिस 2007 मक्का मस्जिद बम धमाके को शायद भूल चुकी है। इसीलिए हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात और हुकूमत की बद इंतजामी का शिकार बना दी गई है। इस मस्जिद को देखने हर दिन हज़ारों की तादाद में सियाह व मुसल्लियाँ आया करते हैं। नमाज पंजगाना में मुसल्लियों की कसीर तादाद शरीक रहती है। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमती इदारे मई 2007 की तारीख को दोहराना चाहते हैं, जहां ज़ाफ़रानी दहशत गर्दों ने बम धमाके किए थे, जिसमें 9 अफराद हलाक और दहशत के आलम में घरों को लौट रहे मुसल्लियों पर पुलिस की फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत हो गई थी और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। तकरीबन 20 साल के गुजरने के बाद भी मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी में कोताही की जा रही है, जबकि मक्का मस्जिद के करीब वाक़े एक गैर मजाज इबादत गाह पर दिन रात मसला पुलिस के दस्ते मुतय्यन रहते हैं। मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट का ओहदा गुज़िश्ता 1 साल से मखलूआ है। इस मस्जिद के उमूर की जिम्मेदारी मैनेजर निभा रहे हैं। यह मस्जिद पहले हिंदू औकाफ के तहत थी, लेकिन बाद में इसे महकमे अक़लियती बहबूद के तहत दिया गया। मस्जिद की सफाई और रोज़मर्रा के कामों के लिए दरकार अमला की कमी है। बम धमाके के वाक़े पर इस मस्जिद को सिक्योरिटी दी गई थी, जो 20 सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन करने का ऐलान किया गया था, लेकिन दिन में 4 और रात में 4 सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन रहते हैं। हफ्ते में एक बार बिलखुसूस जुमा को इनमें 1 या 2 का इजाफा किया जाता है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इन कैमरों पर नज़र रखने वाला कंट्रोल रूम हफ्तों बंद रहता है। कौन सा कैमरा चल रहा है या नहीं मालूम नहीं होता। हमने जब चेक किया तो इस पर 5 कैमरे कारामद थे, लेकिन इनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं। मक्का मस्जिद के अक़बी हिस्से में दीवार को तोड़कर मन चले नौजवान मस्जिद के अहाते में आते हैं और वहां क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। जुनूबी हिस्से में फुटबॉल खेलता हुआ देखा जाता है। मस्जिद के अहाते में एक अरसे तक एक दीनी मदरसा काम करता आ रहा था। इस मस्जिद की मरम्मत के बहाने मदरसा बंद कर दिया गया। मरम्मत तो हो गई, लेकिन मदरसा एक तवील अरसे से बंद है। मस्जिद में दूर दूर से मुसाफिर व सयाह भी आया करते हैं। इनके बैग्स और दीगर अशिया की हिफाजत के लिए एक क्लॉक रूम है। इस रूम की मरम्मत के लिए एक अरसा कबल गुत्ता दिया गया था। काम तो शुरू नहीं किया गया, लेकिन ये क्लॉक रूम वही खस्ता हालत में है, जिससे मुसाफिरीन व सयाह के बैग्स व दीगर अशिया पानी में तैरने से ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत और समाज मक्का मस्जिद को इसके हाल पर छोड़ चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत तारीख़ी व सकाफती महफूज इमारतों का दर्जा रखने वाली यह मस्जिद सरकारी बेहिसी की तस्वीर बनी हुई है। मस्जिद के छत पर घास फूस अज खुद उगने वाले पौधों के सबब इमारत कमज़ोर हो रही है।
کیمیکل واش کے لیے تقریباً 10 سال قبل پروجیکٹ دیا گیا تھا، لیکن یہ کام شروع ہی نہیں ہوا۔ حالیہ دنوں میں سیکیورٹی میں لیپسز کے 2-3 واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود جو اس مسجد کے امور کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے انتظامات کو بھول چکے ہیں۔ سٹی پولیس جو اس مسجد کی سیکیورٹی فراہم کرتی ہے، وہ ایک غیر مجاز عبادت گاہ کے لیے مستعد تو رہتی ہے، لیکن اس مسجد کو وہ بھی بھول چکی ہے۔ کاشف علی خان کے ساتھ میں SM رفیع، 4 TV نیوز۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں منائے جانے والے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ دارالسلام میں منعقد ہونے والے اس جشن کی استقبالیہ کمیٹی کا اتوار کو 3را اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر استقبالیہ اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کی۔ اس اجلاس میں معتمد استقبالیہ اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کے علاوہ مجلس کے ارکان مقننہ، سابق کارپوریٹرز، مجلس کے ابتدائی کے صدور و معتمدین، استقبالیہ کمیٹی کے دیگر ارکان بھی شریک تھے۔ احمد بلالہ نے کہا کہ اس 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے لیے عوام سے عطیات وصول کیے جاتے ہیں اور انتظامات کے اخراجات کے بعد بچ جانے والی فاضل رقم سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے طلباء طالبات میں تعلیمی امداد کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ انہوں نے پارٹی کے ابتدائی کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ عوام کے درمیان جائیں اور اس کاز سے واقف کروائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے SIR کے عمل کو گھر گھر جا کر مکمل کروانے کا بھی مشورہ دیا۔ صدر استقبالیہ و رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں سے انہیں جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبالیہ کمیٹی کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس جشن کے انتظامات، مالیہ کی فراہمی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری SIR کے عمل کے بارے میں بھی پارٹی کے رفقا کو مفید مشورے دیے۔ شعبہ تنظیم کے انچارج سمد بن عبداد نے کارروائی چلائی۔ ارکان مقننہ میر ذوالفقار علی، محمد مبین، کوثر محی الدین اور مرزا رحمت بیگ نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ چار مینار اسمبلی حلقے میں مجلس کی نمائندگی کے ذریعے سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے چار مینار کے مختلف محلہ جات کا دورہ کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر زیر تکمیل کاموں کی بھی جلد تکمیل کے لیے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، پنجا گٹا، امیر پیٹ، بورا بنڈا، یوسف گوڑا، مشیر آباد، چکڑ پلی، RTC کراس روڈ، دومل گوڑا، کواری گوڑا سمیت دیگر علاقوں میں شدید بارش ہوئی۔ اسی طرح دونوں شہروں کے کئی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش سے قبل کچھ دیر تک کے لیے ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر ٹریفک جام دیکھا گیا، جس کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کچھ دیگر علاقوں میں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے گاڑیاں آہستہ چل رہی ہیں۔ پانی جمع ہونے والے علاقوں میں ہائیڈرا اور مانسون ٹیمیں حرکت میں آ گئی ہیں۔ تلنگانہ پولیس نے حیدرآباد سائبر کرائم کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس وی اروند بابو کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ کارروائی ان 2 سائبر کرائم مقدمات پر اٹھنے والے سوالات کے بعد کی گئی ہے جو ان شکایت کی بنیاد پر درج کیے گئے تھے، جن میں الزام تھا کہ وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ بنانے والا قابل اعتراض اور ترمیم شدہ مواد میٹا کی ملکیت والے پلیٹ فارمز یعنی فیس بک اور انسٹاگرام پر پھیلایا جا رہا تھا۔ ان FIRs نے سیاسی اور عوامی سطح پر تنازع پیدا کر دیا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے ان معاملات کا جائزہ لیا۔ اگرچہ حکام نے تبادلے کی باضابطہ وجہ نہیں بتائی، تاہم ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ مقدمات کے اندراج سے متعلق حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان مقدمات کے اندراج پر وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سینئر حکام اور ریاستی پولیس کے اعلیٰ افسران نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ تاریخ اطلاعات کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے مختلف اکاؤنٹس کے خلاف BJP کے حامیوں کی شکایت کی بنیاد پر مقدمات درج کیے گئے تھے، جسے ریاستی حکومت نے سنجیدگی سے لیا۔ حکام کا ماننا تھا کہ یہ
ये मुकदमात इसलिए भी मुतनाज़ा बन गए क्योंकि तलबा की एहतजाजी तहरीक को कांग्रेस पार्टी की कौमी और रियासती क़यादत ने खुलकर हिमायत दी थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इन दोनों मुकदमात के इंदराज की तमाम हालात व वाक़यात पर तफसीली मालूमात इकट्ठी करने के बाद पुलिस के आला हुक्काम के जरिए हैदराबाद साइबर क्राइम के DCP V अरविंद बाबू को उनकी जिम्मेदारियों से हटाकर रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। उपगुड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक शख्स को पत्थरों और सीमेंट की ईंट से हमला करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त राजीव तिवारी की हैसियत से की गई है, जबकि मुलजिमीन की शनाख्त युवराज शर्मा और गणेश की हैसियत से की गई है। मुलजिमीन मुबैना तौर पर नशे की हालत में थे। पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के हनमकुंडा शहर के यादवनगर इलाके में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक यादवनगर के रिहायशी अनिल ने अपनी 31 साला बीवी रजिता के हाथ पांव बांधने के बाद उसका गला काट कर कत्ल कर दिया। यह वाक़या हफ्ते की रात काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अनिल और रजिता ने तकरीबन 6 साल कबल बसंत की शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मियां बीवी के दरमियान घरेलू तनाज़ात चल रहे थे। हफ्ते की रात भी दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इसी दौरान अनिल ने मुबैना तौर पर रजिता के हाथ पांव बांधे और फिर गला काटकर इंतहाई सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे किए और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हुक्काम इस बात की जांच कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर की हिदायत पर हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हुसैनी आलम पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मुकामी मनशियात फरोश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 120 ग्राम ओजी, 5 ग्राम कोकेन, 27 LSD ब्लॉट्स, 2 मोबाइल फोन और एक मारुति सुजुकी जब्त की, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 13,24,500 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार होने वाले मुकामी मनशियात फरोश की शनाख्त 31 साला मोहम्मद सैफ, मोहम्मद शरीफ, 25 साला समीर बाबू भाई वाघेला और आदित्य की तौर पर हुई है। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मनशियात वसूल करने के बाद मोहम्मद सैफ उन्हें अपने मुकामी नेटवर्क के जरिए शहर के मुख्तलिफ सारिफीन को फरोख्त करता था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सैफ के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमा दर्ज हैं। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से पकड़ लिए जाने पर बचने की कोशिश में इसने कार से 2 पुलिस कांस्टेबल्स और एक इंस्पेक्टर को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई 2026 को बावसूख ज़राए की इत्तला मिलने पर हैदराबाद नारकोटिक विंग और हुसैनी आलम पुलिस ने मुश्तरका खुसूसी ऑपरेशन किया है। एक नौमौलूद को फरोख्त करने वाली 2 ख़वातीन को बिलाकर बालापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुमा को BJGR गार्डन शाही नगर में पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नौमौलूद की फरोख्त को बेनकाब किया। ओवैसी कॉलोनी सईदाबाद की 26 साला आफरीन बेगम को MN हॉस्पिटल मलकपेट में चाहशुम बेग को लड़की तवल्लुद हुई थी। बारकस की रहने वाली 46 साला वहीदा खातून इस नौमौलूद को फरोख्त कर रही थी। इसके लिए लड़की की मां को पेशगी रकम भी अदा की गई। पुलिस ने नौमौलूद को शिशु विहार सेंटर मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ दफात के तहत इन दोनों औरतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बच्चों की खरीदो फरोख्त का कहीं कोई रैकेट तो नहीं है। आंटी क्या कर रहे थे आप बच्ची को? दवाखाने को लेके जा रहे थे। झूठ नहीं बोल, हाँ माँ, झूठ बोल रहे आप। नहीं नहीं कसम खुदा मैं रात ही ना रहा सब चीज़। अभी बोले थोड़ी देर बोले बच्ची खरीद रहे बोले आप। नहीं 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 खरीद रहे थे। कितने में खरीद रहे थे आप? 5 लाख रुपए में। ठीक है, कहाँ से खरीद रहे थे आप? पहाड़ी शरीफ से। आप कहाँ रहते? यही रहते शाही नगर। ठीक है। कौन बेच रहे थे आपको बच्ची? इन्हों बेच रहे थे 5 लाख रुपए। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक औरत छोटा बच्ची की हमारा सेल करने के लिए कोशिश कर रहा बोल के हमारा को इंफॉर्मेशन आया, तो हमारा SI और स्टाफ को बिछा के उसका ऊपर रेड कर दिया। एक औरत है वाहिदा खातून, उन्होंने एक छोटा बच्ची की लाके सेल करने के लिए कोशिश कर रहा, उसको पकड़ के उसका बच्ची की भी रेस्क्यू करके उसको शिशु विहार मदरा नगर को भिजा दिया। उसका अम्मी आफरीन बेगम है, इन्हों रियासत नगर में रहता। उनको 4 बच्चा हुआ, ये 5वां है। इनको थोड़ा
फाइनेंशियल कंडीशन पूर था, उनका हस्बैंड का कुछ बीमारी के लिए इसको सेल करके वो पैसे से कुछ घर अच्छा चलाने के लिए इसको वाहिदा को बोल दिया था। उन्होंने वाहिदा भी ये बच्ची को लेके जाके सेल करने के लिए कोशिश करा। आज दोनों की पकड़ के इंट्रोगेशन करके आज कोर्ट में दोनों की प्रोड्यूस कर दी। और आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में आलमी सतह की सरमायाकारी में इजाफा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नुमाइंदा इजलास से नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का का खिताब। कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारियों में वसाअत की वकालत। कंपनी सेक्रेटरीज की सदर्न इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। इंजीनियरिंग तलबा व असातिज़ा के खिलाफ वजीर आला के मुबैना रिमार्क्स। KTR ने राहुल गांधी को लिखा खुला खत। तालाब चंचलम में बरक़ी शॉक से खातून जाँ बहक। और अज़दवाजी रिश्ते में कशीदगी की इंतहा। शौहर ने बीवी का बेदर्दी से किया कत्ल। हनमकुंडा में अफसोसनाक वाक़या। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।